Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 15. This lecture number 15 is related with the accounting cycle, and I would give you some questions to solve which starts from your journal entries up to the completion of your post closing trial balance. This is just like a lecture number 14, but in this lecture I would give you some complicated transactions in which you have to solve by your own self. I would give you some information how to solve them, and by the completion of that question you would be in a position to solve some complicated questions. In my previous lecture I gave you only a very few transactions, and in these transactions we used only 12 ledger accounts. But as far as in lecture number 15 we will talk about more about complicated journal entries, composite journal entries, as we did in our previous lecture. And then finally I would give you also some sample financial statements which relates to the different types of businesses. As we know that we studied about 3 types of businesses. We talked about the simple trading business, in which somebody purchased products, finished products and sell it to the other person, worked as an intermediary. The other type is your services. No product is physically involved. Whereas in the third one organization is producing product, because after the process a new product is produced, its shape, its size, its working condition totally different. आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया और फाइनली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. So I would give you income statement of different organizations. These would be used as a sample organization. उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा. So I would give you a practice question number 1. पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए. सो आई होप दैट यू माइट हैव वर्कड ओवर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद सम कंपोजिट एंट्रीज, एंड दिस इज द अदर points are related with the journal entries that we have already done. For example, start a business, which relates to the capital account, purchase of building, purchase of land, purchase of office equipment, and then it also includes some adjusting entries. So sometime adjusting entries are explicitly explained to you, whereas sometime these entries are not explicitly explained. You have to identify by your own self. उनमें कॉमन एग्जाम्पल आपके पास डेप्रिसिएशन की है कि जिसको आपको नहीं बताया गया होगा लेकिन आपने उनको सॉल्व करना है. Now come back to the practice question number 1. I have given you this question that Laik Ahmed, a certified public accountant, resigned from his position in order to start his own practice. So this is a kind of services type of business. हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो नॉर्मली आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही थे, क्योंकि इसमें नॉर्मली इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है. तो जब इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है तो फिर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं होती. आप आराम से एक सर्विस टाइप का बिजनेस करते हैं. आप अकाउंटेंट हैं, आप उसमें जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप अपने क्लिनिक रन कर रहे होते हैं. आप कोई प्लांट नहीं लगा रहे होते. कॉरपोरेशंस में नॉर्मली प्लांट होते हैं, उनके डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे. हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस से इस वक्त गुजरना है जो हमारे कोर्स आउटलाइन का पार्ट है कि आपने कैसे ट्रांजैक्शंस को करना है, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें आपके पास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है. आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको कैसे डील करना है आपने. आपके पास फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है, उसको कैसे डील करना है. बिल्डिंग डेप्रिसिएशंस हैं, उनको कैसे करना है. फिर मैंने आपको बताया था कॉपीराइट्स, पेटेंट्स,
आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, ये सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है और उसके ऊपर आपने काम करना होता है। अब वो कहता है September 1st अहमद ओपनड अ बैंक अकाउंट इन हिज नेम बाय डिपॉजिटिंग ₹32,000 विद ही हैड सेव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ये आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था और यही इसी तरह की जनरल एंट्रीज होती हैं जो शुरू में की जाती हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आप सिंपल कैश नहीं लेकर आते, आप अपनी जो जाती व्हीकल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कैपिटल। आपके पास बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को भी एज ए कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव ऑल द टाइम यूजिंग एज ए कैपिटल फॉर कैश। Cash is not only the capital. Capital is that amount which is invested by the owner for business purpose. अब आपको सिंपल जितनी भी एग्जांपल्स मिली हैं वो कैश की मिली हैं, लेकिन आप यहाँ पर बिल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी जो इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। आप घर का फर्नीचर भी एज एन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। एंड पीपल डू दिस, लोग करते हैं कि कैश के साथ साथ अपने घर की चीज़ें भी लेकर आते हैं ताकि उनका ऑफिस मेंटेन हो सके, बजाय कि वो बाहर से कुछ परचेज करें और बिजनेस के अंदर लेकर आएं। नाउ in the second journal entry, September 10 purchased a small office building at a price of ₹91,200। अब ये थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट एंट्री थी क्योंकि इसमें आपको एक कॉम्प्लिकेशन का आइटम दिया गया है। आपको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि आपने बिल्डिंग, स्मॉल बिल्डिंग तो आपने परचेज की है, लेकिन उसमें उसने कहा कि जी बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी है, उसके ऊपर जो लैंड है वो उसकी कॉस्ट इतनी है, उसमें से आपने 10,000 पे कर दिया हुआ है, बाकी के लिए आपने नोट पेबल इशू कर दिया हुआ है। अब आपके पास एक तो 91,200 एक तो ये अमाउंट बताई है आपको उन्होंने, देन he told you about 48,000, that is a separate amount. Again 43,200, that is also a separate amount. And then fourth one 10,000, that is also a separate amount. So how do we have to solve this question when you have at least 5 amounts? Because here in notes payable that is a kind of liability. So we have 5 types of amounts used in this journal entry. So what type of amounts we have to use in our journal entry? Again, this is a complicated question. Now look around this journal entry that we are purchasing a building that does cost 91,200. आपने वो चीज आपने 91,200 की परचेज की है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उसमें लैंड कितनी है, आपकी उसमें बिल्डिंग कितनी है। आपने सिंपल इस अमाउंट को सामने रखना है और देखना है कि इस अमाउंट के अगेंस्ट आप पे कितना कर रहे हैं। आपने 10,000 की अमाउंट पे की और बाकी का आपने नोट्स पेएबल बना दिए। यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ लैंड, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, यू आर जस्ट कंसर्न्ड कि आपको टोटल कितने में पड़ी है। आउट ऑफ दैट हाउ मच यू आर पेइंग द अमाउंट एंड रेस्ट अमाउंट वुड बी योर नोट्स पेएबल। आप उसको लिख के दे रहे हैं। Then September 15 purchased a microcomputer from computer store for ₹4,680। आपके पास तीसरी जर्नल एंट्री में ये उसने बता दिया आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो एक दफ़ा टाइटल किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लिया है, किसी भी इक्विपमेंट के लिए यूज़ कर लिया है, यू हैव टू अडॉप्ट फॉर ऑल द टाइम्स। इट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं है कि आप पहली दफ़ा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं फिर आप उसको इक्विपमेंट में ले गए। आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप एक कॉमन वर्ड यूज़ करें इक्विपमेंट, उसमें आपके पास कंप्यूटर भी आ जाएगा, फिर उसमें रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आती जाएंगी, वो उस इक्विपमेंट में लिखते जाएं, रादर देन के कंप्यूटर अलग कर रहे हो आप, इसके अलावा बाकी जो इक्विपमेंट होता है, कोई अप्रेंटिसेस होते हैं तो वो आप उनको अलग लिखें। तो बेहतर तरीका ये है कि कॉमन वर्ड यूज़ करें और उसमें सारी चीज़ें शामिल करते जाएं। अब आपको एक जर्नल एंट्री मैंने बताई है, जो सेकंड जर्नल एंट्री थी आपकी, उसके मुताबिक आपको वो जर्नल एंट्री पास कैसे करनी है।
पहली जो जर्नल एंट्री थी मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी है कि आप सिर्फ कैश यूज नहीं करते, आप कैश के अलावा भी चीजें ले सकते हैं। तीसरी जर्नल एंट्री में आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी है, माइक्रो कंप्यूटर्स की। अब पहली जर्नल एंट्री पे अगर मैं आऊं आपको और आपको बताऊं कि आपने सिर्फ कैश इन्वेस्ट नहीं किया, आप इसके अलावा आपके जो घर है आप उसको भी यूज कर रहे हैं, फर्नीचर है आप उसको भी यूज कर रहे हैं, आपके पास और कोई इक्विपमेंट पड़ा है वो भी यूज कर रहे हैं, ये अब इससे रेलेवेंट नहीं है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल दैट यू कैन यूज कैश you brought, for example, अब that is not related with the this question, specific question, I'm just giving you an example, एक example के थ्रू मैं लेके जा रहा हूं आप लोगों को। कैश you invested for example 10,000, used your own personal land in your business and it did cost 1 lakh rupee, you are using this amount as well। अब ये भी आपका एसेट है, लैंड भी आपकी एसेट, कैश भी आपका एसेट। देन यू आर यूजिंग आल्सो योर फर्नीचर, फर्नीचर इज आल्सो योर एसेट, पर्सनल है, बिजनेस में लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट डिड कॉस्ट 20,000। तीसरा ये हो गया आपके पास, इन केस आपने अपना पर्सनल कंप्यूटर भी बिजनेस में लगाया, आप इसको कंप्यूटर लिख लें या इक्विपमेंट में ले आए इसको, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की इसकी कॉस्ट थी, आपने उसकी अमाउंट लिखनी है, जो हमारी एक मेजरमेंट गैप का मेजरमेंट का हमारा एक प्रिंसिपल था कि आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। आपने सिंपल ये नहीं लिख देना कि कंप्यूटर हम ले आए, नो यू हैव टू राइट द स्पेसिफिक वैल्यू। अब ये सारी सारी आपने जितने भी एसेट्स थे, ये पर्सनल एसेट्स थे, सारे के सारे बिजनेस में ले आए। जब इन सब को बिजनेस में ले आए हैं तो दैट बिकम्स योर कैपिटल। योर कैश इज नॉट ओनली द कैपिटल, द थिंग्स यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन बाद में मिलेंगे कि जिसमें कहा जाए कि जी वो पर्सनल लैंड लेके आ रहा है, पर्सनल बिल्डिंग लेके आ रहा है, पर्सनल फर्नीचर लेके आ रहा है, पर्सनल कंप्यूटर लेके आ रहा है अलॉन्ग विद द कैश। सो ऑल ऑफ दीज बिकम्स योर कैपिटल। तो फिर आप क्या करेंगे, डेबिट, क्या डेबिट ये सारी चीजें की हैं, एंड देन कैपिटल, क्रेडिट। अब इनकी कैलकुलेशन कर लें आप, आपके पास 1,40,000, अब ये आपका कैपिटल है। सो डेबिट ऑल दीज एसेट्स, क्रेडिट योर कैपिटल। इंस्टेड के सिंपल आप इस 10,000 को ही कहें कि दिस इज योर कैपिटल। ऑल द थिंग्स invested by the owner in the business that becomes a part of your capital। फिर दूसरी जर्नल एंट्री आपने जो की है, आपके पास जो एक बिल्डिंग परचेज की गई है, अब उसमें 5 आपको वैल्यूज बताई गई थी। यू आर कंसर्न अबाउट ओनली द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड, विच यू हैव परचेज्ड। आपने 91,200 की बिल्डिंग परचेज की है, आपके पास building debit amount is 91,200, you paid cash 10,000 and then rest of the amount is your notes payable, that is now 81,200। you have completed your transaction। कितने की पड़ी है, उसमें लैंड कितने की है, उसमें बिल्डिंग कितने की है, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको जितने में वो पड़ी है और उसके अगेंस्ट कितना आप पे कर रहे हैं, दिस इज योर कंसर्न अमाउंट। इससे आपका एक ताल्लुक है, आपका बाकी अमाउंट से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। दरमियान में वो फिर बताया कि जिसके रूम्स इतने हैं, वो कितने कितने का है, तो वो फिर बात और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। सिंपल आप देखें कि आपको कितने में पड़ी है वो, एंड देन हाउ मच यू हैव पेड फॉर दैट, रेस्ट अमाउंट वुड बी योर नोट्स पेबल। फिर तीसरी आपने ट्रांजैक्शन की थी कंप्यूटर की। यू कैन राइट कंप्यूटर देन कैश, ये अमाउंट आप लिख सकते हैं, बट इंस्टेड दिस इज मच बेटर टू राइट योर ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, एंड द अमाउंट वाज योर 4,680 4,680 ये आपने जनरल एंट्रीज की पास कर दी है। सो you should use a common word rather than a specific word, because if you have a 2 computer you have to give a separate
लेजर अकाउंट ऑफ द अदर कंप्यूटर। फिर मॉनिटर, फिर आपका जो है वो उसमें प्रिंटर आ जाएगा, फिर आपके रूटर्स होते हैं, वायरलेस होता है, वाईफाई होता है, और पता कितनी चीज़ें आ जाएंगी। यू आर यूजिंग लाइक फर्नीचर, फर्नीचर में आपके पास टेबल्स भी होते हैं, सोफा सेट भी होता है, आपके पास टेबल्स हैं, और पता कितनी चीज़ें होती हैं, बट यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक वर्ड फर्नीचर। दिस इज ओके फॉर यू रादर देन सेइंग के 4 चेयर्स, 1 टेबल, 1 सेपरेट थिंग। सो बेहतर ये है कि आप एक कॉमन वर्ड यूज करें। So these were the 3 journal entries in our previous slide, and I gave you an example about these things which invested by the owner. So that all becomes the part of capital. Then in the 4th entry, September 19, purchased office furniture from the furniture shop at a cost of rupees 3,960. Amount उसकी ये थी, and the down payment was made rupees 720. 720 रुपये पेमेंट की गई है। देन एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन September 28, October 28, November 28, एंड परचेज वॉज मेड ऑन ओपन अकाउंट विदाउट एनी नोट। अब यहाँ पर एक बात क्लियर की जा रही है कि यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी नोट्स पेबल, दिस इज जस्ट एन ओपन अकाउंट। तो भाई इसके लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल अकाउंट्स पेबल अकाउंट है आपका। जब वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है कि you are not supposed to write any notes payable, this is just an open account, this could be with a good relationship from the seller कि okay you have to pay on 28th of September, October and November on each month. So I'm just writing on my own book, we are not writing any promissory note। हम कुछ ऐसे दरमियान में अपनी राइटिंग्स नहीं लेके आ रहे, कोई हम स्टैम्प पेपर यूज नहीं कर रहे। We are just using an open account, you just come on 28th of each month and hand over the money to me। ये आपका सेलर आपको बता रहा होता है। अब आपने अकाउंट्स पेबल क्रिएट करना है इंस्टेड ऑफ नोट्स पेबल। तो आपके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, ऑफिस फर्नीचर आप 3,960 का परचेज कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। 720 आप पेमेंट कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट वुड बी योर लाइबिलिटी and that would be written as an accounts payable। आपके पास फर्नीचर, डेबिट, then cash, credit, and then accounts payable। This accounts payable is used for an open account, whereas when you are writing that this amount I have to pay to this certain seller, this certain person, this certain party, then it would be called as a notes payable। But when it is not written between the mutual agreement, it is not written on the stamp paper, properly not authenticated by a competent authority, then it is an open account. But when you are writing all these things, that becomes the part of your notes payable। Again, September 26 rupees 140 monitor purchased for a computer। September 15 stopped working। आपने September 15 को कंप्यूटर परचेज किया था, अब उसने काम करना छोड़ दिया। अब ये डेट है 26 की। Now the monitor was returned to the store which promised to return within 5 days। अब ये भी अगेन एक ओपन अकाउंट है, क्योंकि आपको वो लिख के नहीं दे रहा है, जस्ट प्रॉमिसिंग। मैं भी प्रॉमिस करता हूं, वो भी प्रॉमिस करता है, देन इट इज व्हेन इट इज ओनली एन ओपन प्रॉमिस, दैट इज योर अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल। जब आप उसको प्रॉपर लिख देते हैं तो दैट बिकम्स योर नोट्स पेबल और नोट्स रिसीवेबल। अब आपने उसको रिटर्न किया तो फिर क्या जनरल एंट्री होगी, जब आप कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो आपके लिए ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड देन अकाउंट्स पेबल या कैश जो भी आपका था, आपने क्योंकि कैश के थ्रू किया था तो कैश वॉज क्रेडिटेड, अमाउंट आपके पास थी। अब उसका उलट हो जाएगा बिल्कुल, जब आप उसको रिटर्न करें द अमाउंट इज 150। नाउ अकाउंट्स रिसीवेबल, बिकॉज द सेलर इज जस्ट प्रॉमिसिंग, ही और शी इज नॉट गिविंग यू द मनी।
अगर वो कैश दे देता तो आप यहाँ पर कैश करते, लेकिन अब वो कैश नहीं कर रहा है, जस्ट प्रॉमिस कर रहा है, तो फिर आपने अकाउंट रिसीवेबल 150 से डेबिट किया और क्रेडिट कर रहे हैं फिर आप किसको, आपका ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, डिक्रीज इन एसेट वुड बी योर क्रेडिट 150 की अमाउंट से। आपने ये भी जर्नल एंट्री कर दी है उसकी। देन September 28 पेड फॉर फर्नीचर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब आपने जो यहां पर September 19 को परचेज किया था ऑफिस फर्नीचर, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ड्यू हो गई है, अब आप वो पे कर रहे हैं क्योंकि आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं आप लोग। पेमेंट करेंगे तो कैश आपकी क्रेडिट हो रही है, डेबिट में आपका नोट्स पेबल, विदाउट एनी नोट था तो अब आपका अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा। उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप, आपके पास अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड देन कैश पे करेंगे, जो आपने कैश पे की है वो क्रेडिट हो जाएगी आपकी। देन लास्ट वन September 30 रिसीव्ड ₹140 कैश फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर। अब जो प्रॉमिस हुआ था उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, यहां पर आपके पास इसका प्रॉमिस हुआ था तो इसकी क्या एंट्री होगी, आपके पास कैश आ रही है, यू आर रिसीविंग कैश 150 रुपीज, वेयर एज अकाउंट्स रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो जाएगा 150 से। अब यहाँ पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट होके ख़त्म हो गया, आपने 150 की कैश रिसीव कर ली है। अब इन सब की आपने जर्नल एंट्री की होंगी, इनको कंपेयर करें जो आपने पीछे किए हैं एंड देन इसके फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएं। ट्रायल बैलेंस बनेगा आपका तो फिर उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्रीज देखनी है। आपके पास यहाँ पर फर्नीचर भी मौजूद है जिसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी, उसकी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट यानी कंप्यूटर भी आपके पास मौजूद है, उसकी भी आपने लेनी है। बिल्डिंग आपके पास है, उसकी भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब टाइम खुद मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि अज्यूम कर लें कि इसका टाइम क्या है। अगर आपको टाइम ना बताया गया, टाइम बता देंगे तो फिर आपने उसके मुताबिक उसकी डेप्रिसिएशन लेनी होगी। अब खुद आप अज्यूम कर लें कि आप फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को आप 10 ईयर्स में डेप्रिसिएट कर रहे हैं, मंथली बना रहे हैं, तो फिर उसको मंथली पहले आप साल पे डिवाइड करें, उसके बाद फिर आपको 12 मंथ्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप मंथली बेसिस पे कर लेंगे। इसी तरह आप फर्नीचर है उसको आप 5 ईयर्स पे ले आए, 5 से डिवाइड करें, आपके पास एनुअल आ जाएगी। मंथली अकाउंट्स अपने क्लोज कर रहे हैं तो फिर डिवाइड करें 12 के साथ, तो फिर आपकी वो पर मंथ डेप्रिसिएशन निकल आएगी। थर्ड अकाउंट आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट का था, कंप्यूटर का था, उसकी 1 साल की आप डेप्रिसिएशन ले लें, डिवाइड करें 12 के साथ, तो आपके पास पर मंथ डेप्रिसिएशन निकल आएगी। So these are the accounts that you have to maintain in your adjustments. After these adjustments, you have to make your adjusted trial balance, and then from adjusted trial balance to your financial statements. अब क्योंकि इसमें रेवेन्यू शामिल नहीं है तो आपके पास सारे का सारा वो एक्सपेंस ही होगा, और जब आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप उसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी शुरू कर दें। इनकम स्टेटमेंट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, देन आप उसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होगा। आपके पास ये सारे के सारे अकाउंट्स बनेंगे। देन वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज फ्रॉम योर अ लिटिल बिट मोर, वी आर गोइंग टू द डिफिकल्टी लेवल। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है। सो वेन एवर यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस you would be very familiar with all of your debit credit rules, all of your journal entries, trial balance, ledger, जितने भी स्टेप्स शामिल होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब आपको मैं खुद क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए, मैं उनकी फिर डिटेल में जाता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी समझ नहीं आती, अब जब ये क्वेश्चन कर लेंगे आप तो फिर आप कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे ज्यादा इजीली जा सकते हैं। नाउ इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, Mr. Naeem started a business of renting tool equipment to its customers. अब ये उसी तरह की बात है, सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही, वही सारे अकाउंट्स यूज किए जा रहे हैं, वही टाइटल्स यूज किए जा रहे हैं। Then business was started on May 1st. Following were the transactions incurred during the month of May. अब आपके पास सारी डिटेल मौजूद है। स्टार्ट बिजनेस किया जा रहा है, ये वाला
दिस पैराग्राफ वुड ऑलवेज बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि ये आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, या आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, ये सर्विसेज वाला बिजनेस है। ये पैराग्राफ आपको बताएगा। देन उसके बाद आपकी फिर जनरल एंट्री स्टार्ट होती हैं। नाउ द फर्स्ट जनरल एंट्री इज ऑन May 1st। नईम ओपन अ बैंक अकाउंट इन हिज नेम विद द डिपॉजिट ऑफ ₹70,000। अब 70,000 से ये काम शुरू किया जा रहा है। वही ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, डू नॉट नीड टू गो इन द डिटेल, आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है। देन May 2nd, नाउ नईम bought land for use in its operations at a cost of ₹75,000। अब एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट सी हाउ मच कैश यू आर इन्वेस्टिंग एंड देन हाउ मच यू आर परचेजिंग। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि आपने इन्वेस्ट किया 70,000 और आप कोई चीज कैश पे परचेज कर रहे हैं 1 लाख रुपए की, तो आप 25,000 कहां से लेके आएंगे। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि यहां पर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट हो रही है 70,000 कैश की, लेकिन यहां पर 75,000 आप परचेज कर रहे हैं कैश पे। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कैश ही नहीं तो आप कैश कहां से देंगे। फिर आपने कुछ और चीजें भी परचेज करनी होंगी, तो उनके लिए भी आपने कैश पे करना होता है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट वेन एवर यू आर परचेजिंग एनीथिंग, बी केयरफुल कि आप कैश कितना दे रहे हैं और बाकी अकाउंट्स पेबल या नोट्स पेबल आपका कितना बन रहा है। नाउ अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹15,000 वॉज मेड। अब यहां पर बात क्लियर हो रही है हमारी कि वी आर पेइंग 15,000 कैश एंड अ नोट पेबल विद इन 90 days वॉज इशूड फॉर द बैलेंस। अब यहां पर एक चीज का और ख्याल करना है कि यहां पर आपको क्लियरली बताया जा रहा है 90 days। So this notes payable is less than 1 year, so it would go in the current liabilities, a short term liability। जब आपको नहीं बताता तो आप उसको अज्यूम करें कि this is a short term liability। जब आपको बता रहा है 90 days, तो this is understood that this is a short term liability। लेकिन आपको अगर वो लॉन्ग टर्म कहता है तो it would be for a long term, long term may be more than 1 year, 1 साल से ज्यादा का होगा, उसकी फिर वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, अमाउंट ज्यादा होगी आपकी। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ कंपोजिट एंट्री, एंड कंपोजिट एंट्री इन्वॉल्व्स द कैश पेमेंट, नोट्स पेएबल एंड द टोटल अमाउंट दैट फॉर दैट you have purchased your land. Then on May 5, a movable building was purchased for ₹16,000 and installed on the lot. जो आपकी एरिया था, जो आपने परचेज की थी लैंड, उसके ऊपर अब एक मूवेबल लैंड को इंस्टॉल किया गया एंड दैट डिड कॉस्ट 16,000. अब यहाँ पर मैं बेसिकली वैल्यूज़ की अमाउंट कम लिख रहा हूँ, हालांकि लैंड की कॉस्ट बहुत हाई होती है, बिल्डिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है, इवन कि आप एक कमरा भी ले लें तो उसकी अमाउंट भी 1 लाख से ऊपर चली जाती है जो आपका मूवेबल होता है. तो यहाँ पे वैल्यूज़ इसलिए कम यूज़ की जा रही हैं ताकि हमें इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगाकर अपनी कैलकुलेशंस को डिफ़िकल्ट ना कर लिया जाए. So that is why I am using these small values. Now a movable building was purchased 16,000 and installed. अब एक चीज़ का और आप लोगों ने ख्याल करना है कि when in the journal entry it is not informed about the cash or a payable amount. It is understood that this is done through cash. अब यहाँ पर देखें कहीं पर भी आपको कैश का जिक्र नहीं है and installed on it. तो this is understood कि आपको कैश ना बताई हो बेशक और आपको अकाउंट्स पेबल भी ना बताया गया हो, तो आपकी टोटल अमाउंट वो कैश के थ्रू होगी. अब आपके पास May 5 a movable building was purchased for ₹16,000 and installed on the lot. कुछ भी नहीं बताया गया. जब कुछ भी ना बताया जाए उसकी पेमेंट का सोर्स, देन आप लोगों ने इसको अज्यूम करना है कि दिस इज़ डन थ्रू कैश. इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ. दरम्यान में जनरल एंट्री डाली गई है कि आपको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. अब आपको यहाँ पे कैश के बारे में भी नहीं बताया गया, आपको नोट्स पेबल या अकाउंट्स पेबल के बारे में भी नहीं बताया गया, तो देन दिस इज़ अगेन अंडरस्टूड कि आपने ये सारी पेमेंट कैश के थ्रू की है.
Then May 10, equipment was purchased on credit from Ace Tool Company at a cost of rupees 1,14,100, and accounts payable was to be paid within 90 days. Again, I think this is not a difficult कि आपने ये सारे अमाउंट सारे टूल्स आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, कैश की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कैश को नहीं बताया गया कि जी दरमियान में आपने 1000 पे किया है, 2000 पे किया है, 3000 पे किया है, नथिंग वाज मेंशन्ड. तो आपको बता भी दिया गया कि 90 डेज में पे करना है, तो दिस इज योर लायबिलिटी. सो वी हैड मेड दीज 5 ट्रांजैक्शंस. इसमें आपके पास मुख्तलिफ जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी वो बताई गई हैं. नाउ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पास दीज जर्नल एंट्रीज, मेक देयर लेजर अकाउंट्स एंड देन फाइनली देयर ट्रायल बैलेंस. फिर आप इसमें देखें कि इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी हो सकती हैं. आपके पास बिल्डिंग मौजूद है, बिल्डिंग इक्विपमेंट है आपके पास, एंड इफ़ यू गो बैक you can see that you have purchased land, so it means there is no land depreciation. We know that the land has an infinite life. We don't use any depreciation for land. We just use only about the building and the office equipment. And then in the 6th transaction, May 31st, a cash payment of rupees 20,000 was made in the partial settlement of notes payable issued on May 3. अब जो आपने लैंड परचेज की थी उसमें से आपने पेमेंट की, फिर फाइनली आपने नोट्स पेबल लिख के दिया. अब उस नोट्स पेबल में से आप 20,000 की अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपको वो नोट्स पेबल 20,000 की अमाउंट से डेबिट होकर कम हो जाएगा और क्रेडिट में आपके पास कैश की अमाउंट होएगी क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं. सो दीज आर द 6 बेसिक ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव टू पास. फिर वही आपने प्रोसेस अडॉप्ट करना है. आपके पास यहाँ पर मेंशन किया गया है जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस. इसमें अगेन आई से यू जस्ट अज्यूम देयर लाइफ टाइम डिवाइड बाय दो, उनका एक लाइफ टाइम है उसको डिवाइड करें, 10 है, 5 years है, फिर मंथली बना रहे हैं तो आप मंथली से डिवाइड करें. So I hope that this question can easily be solved by you. Now I am giving you another question for your practice. This is a complete accounting cycle with more transactions, more complicated journal entries that you have to make your practice. Now let's see this question number 3. Mr. Abdullah, after completing his medical education, established his own practice on May 1st. Now the following transactions occurred during the first month. In this question, you will find that there are a lot of transactions you have to make, lot of ledger accounts you have to prepare, and finally we will put it all the data in the trial balance. After trial balance, you will find also some specific information about your property, plant and equipment. Now let's see right from the start. May 1st, Abdullah opened a bank account in his name of Abdullah Clinic by making a deposit of rupees 12,000. He is just starting his business with the amount of rupees 12,000. You can easily solve this question. May 1st, paid office rent for May rupees 1,700. Now this is very important that either it's your expense or your prepaid expense. You should be very careful about the dates. Now you are paying this rent 1,700 on May 1st for the month of May, so it means that this is your prepaid expense. आपने इसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट कर दी है आपने एडवांस में. अब ये जब 31st को पहुंचेंगे मई के तो फिर आपका ये एक्सपेंस होगा, बट बिफोर दैट दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंस विच इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स. देन May 2nd, purchased office equipment for cash rupees 7,200. This is a very simple journal entry. You have already familiar about this kind of transaction. Then May 3, purchased medical instruments from Neil's Instruments
incorporation at a cost of rupees 9,000. A cash payment of rupees 1,000 was made and a note payable was issued for the remaining amount of rupees 8,000. आपने 9,000 की परचेज की, 1,000 उसमें आपने कैश पे किया, 8,000 का एक प्रॉमिसरी नोट आपने बनाया. Now May 4 retained by Rafi Construction to be on a call for emergency service at a monthly fee of rupees 400. The fee for May was collected in cash. Again, this is a very complicated transaction. Although it is not complicated, but some confusing words are used. A construction company who has hired you that in case of any emergency you have to come and make the treatment of their employees. अब वो आपको एडवांस में हायर कर रहा है, आपको कैश पेमेंट भी कर दी है उसने, आपने इसकी जनरल एंट्री पास करनी है क्योंकि आपको ये कैश एडवांस में पे की जा रही है. क्या ये आपने फिर अर्न किया है? जिस तरह आपने पिछली ट्रांजैक्शन की थी एडवांस रेंट की, तो आपको ये एडवांस पे इनकम मिल रही है, रेवेन्यू मिल रहा है. तो क्या आपने ये अर्न किया है? अप टू दिस स्टेज यू हैव नॉट येट अर्नड, बट नाउ you have to pass the transactions as an earned revenue, क्योंकि आपको उसने हायर किया है और एडवांस में पेमेंट कर दी है 400 की. Then on May 15, excluding the retainer of May 4, fees earned during the first 15 days of month to rupees 1,600, of which rupees 600 was in cash and 1,000 was in account receivable. Again आपको एक 1600 की अमाउंट मिली, आपने अर्न किया, जो आपको 4 मई को आपने फीस जो दी थी, फीस आपको रिसीव हुई थी, कैश रिसीव हुई थी, अब उसमें से आप वो माइनस करें. एक्सक्लूडिंग द रिटेनर ऑफ रुपीज 400 फीस अर्नड ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज, आपने उस शामिल नहीं की 400. अब वो कहता है कि rupees 1600 of which rupees 600 was in cash and 1000 was in account receivable. आपने 15th तक इतनी अमाउंट अर्न की, यानी आपकी टोटल अर्निंग्स जो हैं, should I write here that you have earned 2000 rupees for the first 15 days, but you have excluded 400. नेट अमाउंट इज नाउ 1600 जो आपने 15 तक अर्न किया है. उस 15 में से आपने 600 की कैश रिसीव किया है, बाकी लोगों ने आपसे उधार किया और वो आपके लिए रिसीवेबल है. नाउ आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. देन May 15 पेड नोमान अ स्टाफ नर्स सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ May रुपीज 1000. एक स्टाफ नर्स है आपका नोमान, उसको आपने उसकी सैलरी दी है, आपने कैश पेमेंट की. अब नाउ लुक एट ऑन द ट्रांजैक्शन दैट इज देयर एनी वर्ड रिटन अबाउट द कैश आर पेबल, नॉट येट, सो इट मीन्स दैट यू आर पेइंग कैश. आपने वो कैश टोटल ट्रांजैक्शन आपने कैश की है, कैश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं. देन May 16 डॉक्टर अब्दुल्ला विड्रू रुपीज 975 फॉर पर्सनल यूज. इस ट्रांजैक्शन को भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जितने भी हमने पीछे लेक्चर्स 3-4 लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने इसको पढ़ा है. आपकी ड्राइंग्स क्या थी? एग्जांपल्स में हमारे पास 2000 की ड्राइंग्स थी. अब इस क्वेश्चन में आपके पास 975 की ट्रांजैक्शन है. देन May 19 ट्रीटेड पेशेंट फॉर माइनर इंजरीज एम्प्लॉय फ्रॉम रफ़ी कंस्ट्रक्शन. अब आपने इसकी क्या ट्रांजैक्शन करनी है? अमाउंट नहीं लिखी हुई यहाँ पर आपके पास, लेकिन आपको ये बता दिया गया कि आपने उसकी जो रफ़ी कंस्ट्रक्शन आपसे सर्विसेज हायर की थी, उसमें एक एम्प्लॉय इंजर हुआ कंस्ट्रक्शन के दौरान, आपने उसको ट्रीट किया. तो क्या इसकी जनरल एंट्री होगी? यू आर नॉट रिसीविंग कैश, नो कैश वर्ड इज यूज्ड हेयर, नो अकाउंट्स रिसीवेबल वर्ड इज यूज्ड हेयर, सो इट मीन्स दैट वी शुड नॉट पास द जनरल एंट्री, क्योंकि आपको वो मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहा है.
तो वो पर ट्रांजैक्शन नहीं पे कर रहा, पर ट्रीटमेंट नहीं पे कर रहा, उसने आपको एडवांस में पेमेंट की कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय इंजर होंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान, जख्मी होंगे, आपने उनको ट्रीट करना है। देन May 27 treated patient who paid ₹25 cash for an office visit and who agreed to pay ₹35 on June 1st for the laboratory medical test completed on May 27। अब यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन आ चुकी है, आपके पास यहाँ पर ₹25 भी हैं, ₹35 भी यूज़ किए गए हैं, देन June 1 लेबॉर्ट्री टेस्ट उसके हुए हैं जो आपको बाद में पे करेगा। अब आपके पास ट्रीटेड पेशेंट हु पेड ₹25, आपको कैश तो रिसीव होगी फॉर एन ऑफिस विजिट, एंड देन हु एग्रीड टू पे ₹35, एग्रीड टू पे मीन्स कि ये आपका रिसीवेबल है, ऑन June 1 फॉर लेबॉर्ट्री मेडिकल टेस्ट कंप्लीटेड May 27। अब आपके लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होंगे, उनकी भी फीस बनती है, लेकिन अभी तक वो फीस होगी कितनी वो आपको नहीं पता। ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी है। आपका अब कंसर्न 25 और 35 के साथ है। टोटल रेवेन्यू आपका कितना बनता है ₹60, उसमें से आप 25 रिसीव कर रहे हैं, 35 आप रिसीव कर नहीं रहे, तो वो आपके लिए अब रिसीवेबल है। देन May 31 एक्सक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ऑन May 27 फीस अर्नड ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द मंथ अमाउंटेड टू ₹4,000। अब अगेन यहाँ पर इस तरह के यूज़ किए गए हैं वर्ड, एक्सक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विजिटेड ऑन 27। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुख्तलिफ लोगों को चेक करते रहे हैं, अर्न करते रहे, चेक करते रहे, अर्न करते रहे, और अब इस स्टेज पर आपने 4,000 तक अर्न किया फॉर द लास्ट हाफ ऑफ द मंथ। आपने अगले जो 15 दिन थे फ्रॉम 16 to 31 आपने 4,000 अर्न किया। अब इस 4,000 में आपकी जो 27th का पेशेंट था वो अमाउंट शामिल नहीं है, वो शामिल होती तो आपने उसकी तो जनरल एंट्री ऑलरेडी कर ली थी। नाउ एट दिस स्टेज दिस ट्रांजैक्शन टेल्स यू दैट you have earned in the second half of the month up to 4,000 which does not include your 27th transaction। तो आप तो इस सारी की करेंगे। अगर आप वो कहता है कि which includes, तो आप वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके थे, वो ₹60 इसमें से माइनस करते। देन ऑफ विच ₹2,100 वॉज इन कैश। अब आपके पास देखिए कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस बनती जा रही हैं, इसमें एडिशन होता जा रहा है चीज़ों का। एंड ₹1900 वॉज इन अकाउंट रिसीवेबल। आपके पास अब वो कितनी, मतलब एक कंफ्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रहा है कि एक्सक्लूडिंग 27th ट्रीटमेंट वो शामिल नहीं है। सेकेंड हाफ ऑफ का रेवेन्यू आपका 4,000 है, आउट ऑफ विच 2,100 वॉज रिसीव्ड इन कैश, वेयर एज 1,900 यू हैव टू रिसीव इन द लेटर पीरियड, तो वो आपके लिए रिसीवेबल बन गया। अब हर एक ट्रांजैक्शन को आपने इंडिपेंडेंट लेना है, फिर हर ट्रांजैक्शन में आपने देखना है जो जर्नल एंट्री आपको बताई गई हो कि पहला पार्ट क्या बता रहा है आपको, फिर दूसरा पार्ट क्या बता रहा है। अर्न आपने कितना किया अप टू 4,000, उसमें से आपने रिसीव कितना किया 2,100, फिर आपने रिसीव कितना नहीं किया उसमें से 1,900। आपके पास ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस मौजूद है, इनको आप डिवाइड करें, डिवीजन के बाद फिर आप देखें कि आप इस ट्रांजैक्शन में डेबिट कितना होना है और क्रेडिट कितना होना है। देन May 31 पेड नोमान अ स्टाफ नर्स ₹1,000 सैलरी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ। ये ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ की उसको सैलरी दी जा रही है, दैट इज 1,000, एंड यू नो दैट दिस इज योर एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस कह लें या सैलरी एक्सपेंस कह लें इसको। अब उसको कैश भी दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कोई कैश का वर्ड ना अकाउंट्स पेबल का वर्ड यूज किया गया। देन May 31 received a bill from Sialkot Medical Supplies in the amount of ₹640 representing the amount of medical supplies used during May। अब आपके पास यहाँ पर एक आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, आपने सप्लाईज परचेज की 640 की एंड अमाउंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज यूज्ड ड्यूरिंग द May। देन May 31 पेड यूटिलिटीज फॉर द मंथ ₹300। कई दफ़ा ट्रांजैक्शन ये कर चुके हैं हम।
आप 300 की अमाउंट आपने पेमेंट की है। पेड मीन्स कि यू आर पेइंग कैश, आपके पास यहाँ पर कैश की अमाउंट यूज़ की गई है। तो आपने यूटिलिटीज़ पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, आपने टेलीफोन बिल पे किया होगा, गैस बिल पे किया होगा, ये कोई आपके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने पे किए होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। देन अदर इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद योर एडजस्टमेंट्स। बिफोर दैट before these journal entries we have done, these are all your normal course of operations. नॉर्मली आप रूटीन में परचेज करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, आपने ट्रांजैक्शन की हैं, आपने अपने एक्सपेंस किया है, आपने और भी काम किए हैं। लेकिन अब आपको जो अदर इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो आपकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आपकी स्पेसिफिक है। डॉक्टर अब्दुल्ला एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट 3 years। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो बता रहा है कि आपके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑपरेटिसेस हैं आपके, वो 3 साल तक चलेंगे। एंड द ऑफिस इक्विपमेंट 5 years। आपके पास अब 2 यहाँ पर वो बता रहा है। एक आपके पास 3 years, वो क्या है आपके इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑफिस इक्विपमेंट 5 years। इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके वो 3 years चलेंगे। आपके पास उसमें ब्लड प्रेशर मशीन हो सकती है, आपके पास उसमें स्टेथोस्कोप, आपके पास इसमें जो दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटिसेस होते हैं आपके, वो हो सकते हैं। स्टेथोस्कोप है आपकी, वो यूज़ हो सकती है। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विपमेंट में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनकी उसने यूज़फुल लाइफ बताई है। अब ये आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आपने फिर इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक चलना है, इसमें आपने अज्यूम नहीं करना है। जिस तरह आपको बताया जाएगा आपने उसके मुताबिक इसको कंटिन्यू करना है। जो अप्रेटिसेस थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसकी प्राइस और जो उनकी वैल्यू थी उसको डिवाइड करेंगे आप 3 years पे। अब अगेन एनुअल अकाउंट्स आप बना रहे हैं तो, और अगर मंथली अकाउंट्स बना रहे हैं तो देन डिवाइड बाय 12 कर देंगे उसको। पहले डिवाइड किया आपने ईयर्स पे, पर ईयर आ गया, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं आप पर मंथ पे। 12 से डिवाइड किया तो आपके पास पर मंथ आ जाएगा। सेम इज द केस विद द ऑफिस इक्विपमेंट। फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड विद द 5 वैल्यू ऑफ योर ऑफिस इक्विपमेंट, देन आफ्टर कंप्लीटिंग डिवीजन ऑफ विद द 5 years you have per year value, then you divide with the 12, you would get 1 year per month depreciation। तो ये आपने उसके मुताबिक चलना है। ये आपके एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, आपने इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। अब एक आपको शुरू में बता दी जाएगी यही इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपकी शुरू की होगी, बाद में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। आपके मंथ्स पास ऑन होते जाएंगे, आप ये ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे, आपके मंथ्स पास ऑन होते जाएंगे, आप ये ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे। आपने खुद फिर इसको आइडेंटिफाई करना है, खुद याद रखना है, और उसके बाद अकाउंट्स बनाने हैं। अब अगर हम वापस जाएं, हम देखें कि आपके पास यहाँ पर कितनी जनरल एंट्रीज यूज़ की गई हैं, फिर उसमें आप देखें कि कितने आपके लेजर अकाउंट्स यूज़ किए गए हैं। अब इसको आप साथ साथ करते रहें। उसका तरीका ये होगा कि पहले आप एक जर्नल एंट्री बनाएं, फिर उसी जर्नल एंट्री को उसके रेलेवेंट लेजर में पोस्ट कर दें। जब ये सारे लेजर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लेजर 1, 2, 3, 4 अप टू जितने भी आपके लेजर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जितने भी आपके सेपरेट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं इसमें आपकी, उन सब को कंप्लीट करें, फिर उनका टोटल बनाएं। टोटल करने के बाद फिर उनके बैलेंसेस देखें, देन बैलेंस शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू योर ट्रायल बैलेंस, and this trial balance is your unadjusted trial balance. After this trial balance you have to make the adjusting entries of these your office equipment and your medical instruments, उनकी करें, then make your adjusted trial balance adjustments, and then finally make it adjusted trial balance. After completion of this adjusted trial balance you have to make the income statement। आपने इसमें इनकम अर्न की है एक रफ़ी ग्रुप की तरफ से,
और एक आपने अर्न की है जो 4000 मैंने आपको बताया था, फिर एक 1600 की भी थी आपकी। एक और एडजस्टिंग एंट्री थी, इफ यू कुड रिमेंबर, वी हैड पेड एडवांस रेंट। आपने 1700 रुपया एडवांस आपने रेंट पे किया था। अब जब आप 31st पर पहुंच चुके हैं तो आपने उस 31st को उसको एक्सपायर करना है, तो आपने एक्सपेंस बनाना है, तो उसकी भी आपकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। तो यू हैव टू मेमोराइज देम कि आपने कौन सी एंट्री किसकी करनी है। देन यू हैव टू मेक योर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे आइटम्स। फिर मैंने आपको बताया था कि योर इनकम स्टेटमेंट कॉलम विल नॉट बी इक्वल, योर डेबिट एंड क्रेडिट विल नॉट बी इक्वल बिकॉज you have a more revenue, less expenses, and the difference would be your net profit. This net profit would be added in your capital account, part of balance sheet. तो फिर आपके जो बैलेंस शीट है वो इक्वल होगा, उसका डेबिट और क्रेडिट के इक्वल होगा। जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर इट मीन्स के आपने जो एंट्रीज थी वो ठीक पास की थी। अनटिल अनलेस के जो हमने शुरू लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ और आपके एरर्स हो सकते हैं जिसमें आपके डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो और आपने गलत उसके लिए यूज किए हो वैल्यूज, दोनों डेबिट की और क्रेडिट की भी। देन क्लोजिंग एंट्रीज, यू हैव टू मेक योर इनकम समरी अकाउंट। All expenses and revenues would be closed in your income summary account, and then this income summary would be closed in your capital account. And finally, you will make after closing trial balance या post closing trial balance. आपका सारे का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो कंपोनेंट्स बचेंगे दैट वुड बी योर जस्ट लाइक बैलेंस शीट कंपोनेंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स आपने सारे क्लोज कर दिए। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक सो कि आपको पूरे का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। इससे पहले सारी की सारी मैंने चीज़ें सॉल्व की थी। नाउ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। मैंने आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन अब तक दे चुका हूँ जिनको आपने सॉल्व करना है। सो अप टू दैट यू हैड कंप्लीटेड योर 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक सैम्पल जनरल एंट्रीज, सैम्पल इनकम स्टेटमेंट्स दिखाना चाहता हूँ इन विच वी हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। You have banking industry, services type of business. You have manufacturing industry, which includes some inventories. उनकी कैसे बनती हैं, उनमें कौन कौन से components यूज किए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। Let's see over there sample financial statements. उनमें हम इनकम स्टेटमेंट बेसिकली यूज करेंगे कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस। वो कैसे जा रहे हैं, बेहतर हैं या बेहतर नहीं है, दैट इज शोन इन योर इनकम स्टेटमेंट। क्या आपने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सस्टेन किया, आपने ऑपरेशंस किए हैं, क्या वो यूजफुल भी रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं ये आप लोगों ने देखने हैं। जो उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज देयर इंटरेस्ट इनकम। जो वो लोगों को एडवांस देते हैं, लोगों को लोन्स देते हैं, तो उसके थ्रू जो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इस वक्त पाकिस्तान में 16 से 20% के दरमियान इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द बैंक एंड आस्क फॉर द लोन, सारे का सारा चेक किया, कोलेटरल मेरे चेक किए, सिक्योरिटी चेक की, देन दे हैव गिवन मी द लोन। उस लोन के अगेंस्ट आई हैव टू पे द इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। आपने जो लोन लिया वो भी वापस करना है और आपने उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। सो द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ कन्वेंशनल बैंकिंग इज देयर इंटरेस्ट इनकम, दैट इज दिस अमाउंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये मैं बहुत छोटी अमाउंट ले रहा हूँ just to tell you that how this income statement is prepared. So the main source of revenue for the banking industry is their interest income. Interest income comes from the people, those who have taken loan from the banks. And now interest expense is a major expense for the bank. अब ये कौन सा expense है? This is the interest which is given to the depositors. बीइंग ए डिपॉजिटर, मैं बैंक हूँ, बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैंने बैंक को अब
अपना डिपॉजिट दिया हुआ है, बैंक में मैंने अपने पैसे जमा करवाए एंड बैंक हैज़ टू गिव मी द इंटरेस्ट, तो ये बैंक का मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंस होता है, मेजर आपका एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट इनकम, लोगों को लोन दिया, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट अर्न किया बैंक ने, और लोगों ने बैंक में डिपॉजिट्स करवाए, अब बैंक ने उनको इंटरेस्ट दिया, तो वो बैंक का मेजर सोर्स हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ वुड बी द ग्रॉस इनकम या आपको नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द बैंक। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 18% बैंक चार्ज कर रहा है लोन देने पे, और डिपॉजिटर्स को वो दे रहा है 10%, सो इट वुड बी 8% ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बैंक, दिस इज देन इनकम ऑफ द बैंक। अब 18% वो चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले, और 10% लोगों को लोन दिए इंटरेस्ट दिए जा रहा है उनके डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो डिफरेंस दरमियान में 8% बैंक का प्रॉफिट होता है, और यही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपके 8% को रिफ्लेक्ट करता है। देन दे हैव सम अदर items as well. The other one source of revenue is your fees and commission income. अब ये वो इनकम है जो उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, ये उनके वो ऑपरेशंस होते हैं जो अदर देन देयर कन्वेंशनल बैंकिंग करते हैं। इसमें आपके पास बैंक आपको मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इज collecting utility bills, this is not a part of their conventional banking, this is their other type of business operations, एक separate division बनाया हुआ वो भी परफॉर्म कर रहा है वो। अब वो यूटिलिटी बिल्स कलेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो अमाउंट ले रहा होता है, उन कंपनीज से चार्ज कर रहा होता है वो। अब क्योंकि कंपनी से लिए जा रहा है, इससे पहले वो सारे का सारा वो एक डिपॉजिटर देता, जो बिल जमा करवाता था वो देता था, उसमें 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ की अमाउंट होती थी या 5 रुपीज़ की अमाउंट होती थी पर बिल के हिसाब से, या फिर उनके पास एक लॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, उसके अगेंस्ट वो अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिसमें वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है बैंक, तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर अदर टाइप ऑफ बिजनेस, तो वहाँ से भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने अब सिर्फ फोकस इस पे नहीं किया है कि सिर्फ हम इंटरेस्ट के थ्रू अपना प्रॉफिट अर्न करें, इसके अलावा वो अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस भी कर रहे हैं जिसमें वो फीस चार्ज करते हैं सर्विसेज देने की, या कमीशन चार्ज करते हैं कोई चीज़ सेल परचेज करने की। आपके पास अगर आप देखें कि लीज पर गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, तो उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ गई है, पहले ओपन था, अब बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, लीज के थ्रू वो अर्न कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें जिसके थ्रू वो चार्ज करता है। अब जिस तरह वो ये सर्विसेज दे रहा है, तो इसी तरह वो बड़े बैंक्स के से ये सर्विसेज ले भी रहा होता है। जब वो सर्विसेज दे रहा है तो फीस और कमीशन इनकम अर्न कर रहा है। अब इससे ऊपर बड़े बैंक्स हैं जिनसे वो सर्विसेज ले रहा है, तो अब उनके लिए ये एक्सपेंस बन गया। इसी तरह इनका सिस्टम चलता है, फीस और कमीशन इनकम उनका एक्सपेंस भी बन जाता है। अब लोगों को वो दे रहा है सर्विसेज, उसके अगेंस्ट फीस और कमीशन ले रहा है। दूसरी साइड पे बड़े बैंक्स हैं, उनसे वो सर्विसेज ले रहा है, उसके अगेंस्ट वो फीस और कमीशन दे भी रहा है उनको, तो इनका डिफरेंस अब आपके लिए यहाँ पर उसका एक्सपेंस बन जाएगा। देन बैंक्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग इनकम, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस। अब वो क्या हो सकते हैं आपके पास, बैंक खुद इटसेल्फ मार्केट में जाकर शेयर्स की सेल और परचेज करते हैं, खुद वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब बैंक्स जब पिछला जो टाइम पीरियड गुजरा है उसमें जो प्रॉपर्टी है उनके रेट्स बहुत हाई रहे हैं, तो बैंक भी उसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व हुआ है, उन्होंने सेल और परचेज किए, उसके थ्रू उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है। उन्हें कह के वाई शुड बी लेफ्ट बिहाइंड टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तो उन्होंने अपना एक सेपरेट डिवीजन बनाया और उसके थ्रू उन्होंने भी खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 1 लाख की चीज़ परचेज की और 1,50,000 की सेल कर दी, 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया।
तो banks are also involved in the trading type of business. They are buying the shares, they are buying the certificates, they are buying the bonds, and they are earning their profit. This is the kind of their trading business. उससे वो profit earn करें. अब net trading income उन्होंने ये earn की है. Then other operating income भी हो सकती है. इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं types, interest, fees and commission income, then net trading, इसके अलावा भी अगर उनकी कोई और source है तो वो भी उनके पार्ट ऑफ इनकम बन जाता है, जो इन कैटेगरीज में लाई नहीं करता. आप खुद देखें कि आप बैंक्स किस किस्म के बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं. अब ये आपके पास एक बैंक की सिंपल इनकम स्टेटमेंट है. आप खुद सोचें कि जो बड़े बैंक्स हैं, लार्ज ग्रुप्स हैं, उनकी मैं आपको बाद में इनकम स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा कि वो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, वो किस तरह अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं, कितना मार्केट शेयर वो अपना एक्सपैंड करते हैं, किस तरह वो ग्रोथ करते हैं. अब ये कोई एक बैंक पाकिस्तान में काम कर रहा है तो पाकिस्तान से बाहर जाके भी वो ऑपरेट करना चाहेंगे. देन दिस इज देयर टोटल नॉन ट्रेडिंग इनकम 400 इज देयर नॉन ट्रेडिंग इनकम. अब ये आपकी इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट इनकम हुई. इंटरेस्ट इनकम में से इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने माइनस किया, आपके पास 500 की नेट ट्रेड इंटरेस्ट इनकम हुई. देन इसमें आपने 400 ऐड किया. 400 आपके नॉन इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम थी, वो आपने यहाँ पे ऐड की. इस वक्त आप ऑपरेटिंग इनकम 900 अर्न कर रहे हैं. 500 दिस एंड 400 दिस. नाउ एट दिस स्टेज दे हैव एन ऑपरेटिंग इनकम विच इज 900. आपने वो अर्न किए, अब आपके पास ये इनकम मौजूद है. नाउ कम टू द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. दिस इज योर ऑपरेटिंग इनकम. फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम यू हैव टू डिडक्ट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वो कौन कौन से आपके पास? स्टाफ कॉस्ट. दिस इज द मेजर कॉस्ट फॉर द बैंक्स आफ्टर योर इंटरेस्ट एक्सपेंस. आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस एक सबसे बड़ा उनका एक्सपेंस है. उसके बाद उनकी स्टाफ कॉस्ट, जो वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, वहां का जो स्टाफ है, उनके पास प्रेसिडेंट्स हैं, सीईओज हैं, फिर आपके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, फिर रीजनल आपके मैनेजर्स हैं, उसके बाद फिर ब्रांच मैनेजर्स आ जाते हैं, वहां पर अकाउंटेंट्स हैं, आपका स्टाफ है. दिस इज द सेकेंड मेजर एक्सपेंस ऑफ द बैंक. अब नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बैंक्स बिल्डिंग्स को सिर्फ रेंट पर लेते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग परचेज नहीं करते. 10 साल या 15 साल या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको फिर रेंट इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो उनसे बिल्डिंग्स जो ओनर्स हैं वो वापस नहीं लेते. इसी तरह कैरी फॉरवर्ड होता रहता है. इसलिए उनका वो एक्सपेंस नहीं बनता. मेजर एक्सपेंस उनका जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके बाद स्टाफ कास्ट जिनको वो सैलरीज देते हैं. देन प्रीमिसेस कॉस्ट. नाउ लुक एट दिस कॉस्ट. दिस इज अ बिल्डिंग कॉस्ट, जिसके अगेंस्ट वो रेंट पे करते हैं. अब कोई बिल्डिंग भी हायर की है उन्होंने, उसके अगेंस्ट वो रेंट पे कर रहे हैं, तो दिस इज देयर प्रीमिसेस कॉस्ट, पार्ट ऑफ एक्सपेंस. इसको कॉस्ट या स्टाफ एक्सपेंस कह लें आप, ये भी आपका expense. Then general administrative expenses, and we know that when they have the employees who are administrating their business operations, तो वो भी आपका operating expense का part होता है. Then final one, depreciation and amortization. We have already talked about many times about the depreciation. Now amortization is a other type. इसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया था. ये इनके पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं जो उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है. फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए आपने कोई कॉपीराइट लिया है तो 10 साल बाद उसने ख़त्म हो जाना है. उसके अगेंस्ट आपने जो कॉपीराइट जो आपकी अथॉरिटीज़ थी उनको पे किया था, तो अब आप उसको ऐसा ऐसा एक्सपेंस करते जा रहे हैं, जिस तरह आपने डेप्रिसिएशन को किया था. 10 साल के लिए आपने कोई कॉपीराइट लिया था तो अब 10 साल बाद उसने ख़त्म हो जाना है, तो आप फिर उसको एक्सपेंस करते जाते हैं. So these are your other operating expenses, which is 600. आपका जो operating income थी that was 600. Now operating expenses operating income was your 900 and operating expenses your 600. Now you have a 300 of operating income
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको आप कह लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया गया है इम्पेयरमेंट लॉस, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेंशन मैंने कर दिया है यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। हमने जितनी भी इनकम स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसमें बड़े सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए थे, सिंपल कंपोनेंट्स से। अब यहाँ पर आप खुद देखें, जब कंपनी के लेवल पर आते हैं तो आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नाउ इम्पेयरमेंट और इम्पेयरमेंट लॉस को हम फिलहाल यहाँ पर छोड़ देते हैं। आपके पास यहाँ पर टैक्स है, सो you are paying, for example we are not using this word impairment loss, we are just using this 50, this is a tax. So this tax is to be paid on 300 your income before interest and tax, या income before tax, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट वी आर नॉट यूजिंग इंटरेस्ट इन आवर इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहे हैं। नाउ एट दिस स्टेज वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड इनकम बिफोर टैक्स। नाउ यू आर पेइंग टैक्स अमाउंट, आपने यहाँ पे टैक्स पे किया, अब आपके पास आ रहा है 50 की अमाउंट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज एडेड इन द कैपिटल अकाउंट विच इज नाउ 200, ये 200 की अमाउंट है जो आपने अर्न की है आफ्टर ऑल ऑफ योर एडजस्टमेंट्स, ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल ऑफ योर रेवेन्यूज। जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके पास ये यूज किया जाता है। सो आई होप दैट दिस वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट वी हैव टू गो विद देम, इसलिए शुरू में मैंने बड़े इजी यूज किया है, टर्मिनोलॉजीज भी इजी थी। अब आपके पास जब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जा रहे हैं तो हर चीज़ डिफिकल्ट भी होती जा रही है, और डेफिनेटली होगी क्योंकि बिजनेस आसान नहीं होता। नाउ एट दिस स्टेज we have completed our work for lecture number 15. So let me give you a brief overview. I have given you the practice question from question number 1, question number 2 and question number 3. Question number 1 and 2 was a little bit easy, and I told you that you have to assume the useful life of your property, plant and equipment are fixed assets. खुद अज्यूम करें, उसके बाद उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज करें। देन आई गेव यू अ क्वेश्चन नंबर 3 विच वाज अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट विद द मोर ट्रांजैक्शंस, लेकिन मैंने आपको उसमें बताया है कि आपने ट्रीट कैसे करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास उसमें वर्ड्स की कन्फ्यूजन यूज़ की गई है। देन अदर इन्फॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि आपका ऑफिस इक्विपमेंट और आपके मेडिकल अपरेटिसेस जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी यूजफुल लाइफ कितनी है। यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर ओन सेल्फ, यू हैव टू कैलकुलेट मे बी फॉर द 1 year, फॉर द ईयरली बेसिस और फॉर द basis of your monthly. Then they have also given you the information about your rent. रेंट आपने एडवांस में पे किया था, तो अब आपने उसको फिर उसके खुद एडजस्टमेंट की है और पूरे फेजेस से कंप्लीट होके पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पर आए। एंड देन फाइनली आई हैव गिवन यू अ सैम्पल इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री के उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आपके सामने ये इंटरेस्ट इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस ऑफ द बैंक। देन इसके अलावा वो अदर इंटरेस्ट इनकम से हट के उनकी कुछ और भी इनकम होती है, जैसे फीस एंड कमीशन इनकम है। तो इसी तरह जब वो सर्विसेज दे रहे होते हैं तो सर्विसेज वो अपने से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ले भी रहे होते हैं, तो वो आपका एक्सपेंस, फीस और कमीशन एक्सपेंस बन जाता है। देन फिर आपकी इसके अलावा कहीं और वो इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, खुद ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में जाके बैंक्स, तो वहाँ से इनकम होती है उनको। देन अदर ऑपरेटिंग इनकम, या इन तीनों कैटेगरीज से हट के कोई और उनकी इनकम है, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ देयर अदर इनकम, या अदर देन इंटरेस्ट इनकम। देन वी हैव सीन देयर मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपकी स्टाफ कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट को देखा हमने। फिर प्रीमिसेस कॉस्ट है, प्रीमिसेस एक्सपेंसेस जिसमें आप रेंट पे करते हैं उनके, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सारे सारे आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब ऑपरेटिंग का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन दे हैड एन इनकम बिफोर टैक्सेस और इम्पेयरमेंट लॉसेस।
इम्पेयरमेंट को हमने यूज़ नहीं किया, बाद में हम उसको यूज़ करेंगे इम्पेयरमेंट क्या होती है. एंड वी डिडक्टेड tax of 50. At this stage we reached up to the amount of 200, which is the net income and will be added in the capital of the business. So thank you very much. This is all about lecture number 15 and chapter number 4. So inshallah we will meet with the next topic in lecture number 16. So this is all about. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.